Now, is it visible बच्चों? My screen is visible? Yes, sir. ठीक है, fine. Fine. So we were doing some architecture of this one, isn't it? I think we have not yet started. GSM architecture we have not started yet, na? Yes, sir. I have not started. Not started. Okay, okay. So we will go through this GSM architecture today, and then we will tackle one numerical based on your CDMA. So I was saying that you will be getting some numerical, even in AKTU also, in some exams also, in interviews also, they are asking some question based on this CDMA. So let me go through this. So we will first go for this GSM architecture. It is a very simple one, and then we will switch to the numerical part. So even I have copied some of the content from YouTube. So because I mean, I was not having time, so immediately I copied this one so that I can explain it very easily, isn't it? Fine. So later on we are going to cover this numerical. Okay. So first let me explain what is GSM architecture. So what is the full form of GSM? Or should I take attendance? एक बार attendance भी ले लेता हूँ मैं. So we never know when this connection will go off. So let me take attendance first. So I'm going to tell the roll number, and accordingly you are going to tell the name. Roll number 1, 2, 3, 4. Am I audible, बच्चों? Yes, sir. Okay. 5. Kriti Jain. 5. Kriti Jain. Okay, okay, okay. Then 6. Neetu Ranjan. Okay. 7. Nidhi Kumari. 8. It's not there. Okay. Then 9. 10. 11. 12. Present, sir. Vrinda Okay. Mishra. Fine. Sir, 4 Deepak Kumar. 4. So where were you? अभी ज्वाइन किया आपने? दीपक? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. So present. Anybody else? Anybody is left? ठीक है. So save this file, minimize this file, close this file. Fine. So now we are going to start with your GSM architecture. Clear? So what is the full form? GSM full. System for mobile. Global system for Right. Global system for mobile communication. ठीक है. Very good. So we are going to see the architecture. What are the elements of this GSM? है ना? GSM अगर मैं बोलता हूँ तो elements क्या है? Clear? तो दो आर्किटेक्चर चलते थे. सो अर्लियर वी वेर यूजिंग दिस CDMA ऑल्सो, जो रिलायंस यूज करता था, है ना, जिसका भी हम लोग न्यूमेरिकल अभी देखने वाले हैं, है ना. और एक GSM, बट GSM इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय मोस्ट ऑफ द कंट्री, है ना. 190 कंट्रीज, अराउंड 190 कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस. तो इसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें वो स्कोप है ना, एज कम्पेयर टू CDMA. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, है ना, लाइक वो कीवर्ड्स हम लोग देखेंगे, नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू से इट इज NSS. सो शॉर्ट में अभी हम, है ना, वी आर गोइंग टू राइट NSS. तो हमें समझना पड़ेगा NSS का मतलब क्या हुआ कि नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम. बच्चों आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक. कुछ नेटवर्क ऐसा लगा कि वो साउंड आया, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया. फाइन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस OSS, है ना. तो दिस ऑपरेशन सब सिस्टम को हम लोग बोलेंगे OSS.
ठीक है, एक हम लोग सपोज वी आर गोइंग टू यूज RSS, सो इन दैट केस वी एज्यूम दैट RSS इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर रेडियो सब सिस्टम। क्लियर? तो जहां RSS मैं यूज करूंगा, है ना, सो देयर वी आर गोइंग टू यूज रेडियो सब सिस्टम। क्लियर? ठीक है। नाउ दिस इज द मेन इमेज, सो आई थिंक इमेज इज नॉट वेरी क्लियर। यहाँ देखिए NSS है, यहाँ OSS है। तो मैं एक इमेज वहाँ से ले लेता हूँ, है ना, इंटरनेट से ले लेता हूँ। तो मैंने इसको ओपन भी किया हुआ है टू सेव टाइम। क्लियर? तो यू कैन टेक एनी ऑफ द इमेज। इसमें बहुत सारे इमेज हैं गूगल में से। एक बहुत क्लियर जो दिख रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है। इवन ये वाला जो आर्किटेक्चर, लेट्स गो फॉर दिस ऑल्सो, ये भी शायद ठीक दिख रहा है। ये वही आर्किटेक्चर है जो हमने वो किया हुआ है। सो लेट मी सी वेदर इट इज क्लियर और नॉट। और ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेट मी इंक्रीज द साइज। क्लियर नहीं है ना बहुत। एनीवे कोई सा भी एक ले लेते हैं। एक स्टार्टिंग का ही एक बहुत साफ दिख रहा था मुझे, पहला ही ले लेते हैं ना। ऑल आर ऑलमोस्ट सेम, लगभग सभी सेम है इसके अंदर। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस वन। ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, ये वाला। सो आर एबल टू सी, या थोड़ा सा मैं कंट्रोल++ बढ़ाऊं, मेरे ख्याल से विजिबल होगा बच्चों। Yes. ठीक है। यस सर। इस डायग्राम के बेस पे, है ना, वी आर गोइंग टू टेक केयर। सो हियर यू आर एबल टू सी दैट सिम इज देयर, है ना, जो हम लोग सिम डालते हैं। सो सम मोबाइल स्टेशन इज देयर। सो बेस्ड ऑन दिस मोबाइल स्टेशन वी आर सेलिंग दिस सिम। और इसकी भी लिमिटेशन होती है ना, आगे चल के अभी तो नहीं पढ़ना आपको। अरलांग बी अरलांग सी ऐसे करके एक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जिसमें कि इट इज गोइंग टू टेल दैट हाउ मेनी सिम यू कैन सेल फॉर ए गिवन टावर, है ना। एक टावर में इसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सिम अलाउड नहीं है बेचना। बट नाउ इट इज, आई मीन, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर देन द रिक्वायर्ड सिम्स, है ना। जो भी स्पेसिफिकेशन है उससे बियॉन्ड दैट, और एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा वो सिम सेल कर देते हैं। सो दे एज्यूम दैट एट द सेम टाइम ऑल द यूजर्स आर नॉट गोइंग टू टॉक टू ईच अदर, है ना। ये मान के चल रहे हैं कि जैसे 200 कैपेसिटी है तो वो 400 उसने बेच दिया सिम। क्लियर? उस रीजन में तो 400 बेच दिया, तो ऑब्वियसली दैट इंटायर बैंडविड्थ इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, क्योंकि सबको इसको यूज करना है, इजंट इट। तो ये आप देखेंगे कि ये जो सिम है आपका, वो एक सिम, है ना, टावर से एसोसिएटेड है। सो यू आर एबल टू सी दिस BTS, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे BSC इज गोइंग टू कम्युनिकेट विथ योर MSC। वी विल गो इन डिटेल, एक एक एलिमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे, है ना। HLR, VLR, है ना, होम रजिस्टर, दिस विजिटर लोकेशन रजिस्टर, सबके बारे में एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है, दिस आई मीन इमेज इज बेटर एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज गिवन इन योर PDF। तो ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट पॉइंट्स, अब इसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम, जो शॉर्ट में NSS हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर मैं एक बार दिखाता हूँ, जो NSS है ना, नेटवर्क सब सिस्टम, यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैं ऐसे राउंड कर रहा हूँ, नेटवर्क सब सिस्टम। क्लियर? सो दिस पार्ट इज योर NSS, यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा NSS है। क्लियर? तो NSS के अंदर वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस 5 एलिमेंट्स। इस 5 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो पहला देखते हैं कि, है ना, HLR के बारे में बात होगी, है ना। HLR, VLR, देन AUC, देन EIR, देन MSC, यही सारे 4 थे इसके अंदर। इफ यू सी, अगर आप देखेंगे तो ये सारे चीज़ इसके अंदर कवर हो रहे हैं, है ना। MSC, EIR, AUC, दिस इज नॉट V, दिस इज AU, है ना। AUC ऑथेंटिकेशन के लिए, होम लोकेशन रजिस्टर, है ना, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ये सारे हैं इसके अंदर। PST, है ना, इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, है ना। पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है, ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ये सारा MSC के अंदर कवर होगा। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस, नाउ व्हाट इज ऑल अबाउट दिस HLR, और इसी के बारे में आपको लिखना है। इफ यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर
suppose architecture of your GSM. So you are supposed to make this diagram first. इस तरह का कोई भी एक डायग्राम बनाएंगे, ये चाहे जो मैं अभी प्रोजेक्ट किया हूँ कोई सा भी डायग्राम, है ना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सपोज आपने BTS सपोज एक दिया है तो 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते, है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें कि 2-3 आप दिखा देंगे, दैट इज सफिशिएंट. नाउ कमिंग बैक टू योर HLR. तो ये होम लोकेशन रजिस्टर्स क्या होता है, ये सपोज आई बॉट द सिम, सो आई बॉट द सिम सपोज फ्रॉम मेरठ और फ्रॉम गाजियाबाद, क्लियर. सो गाजियाबाद विल बी अवर होम लोकेशन रजिस्टर. रजिस्टर क्या करता है, कैन एनीवन टेल? फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर ये सब पढ़ा होगा आपने. स्टोर, वेरी गुड, है ना. सो इट इज गोइंग टू स्टोर द इंफॉर्मेशन. लाइक आपने वो भी किया होगा, व्हाट डू कॉल, माइक्रो प्रोसेसर. उसमें A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर, ऐसे ऐसे रजिस्टर्स होते हैं ना जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. क्लियर? जब माइक्रो प्रोसेसर आपने पढ़ा होगा, डोंट रिमेम्बर, नहीं याद नहीं आ रहा, एक बार मैं बोल, याद आ रहा ना, माइक्रो प्रोसेसर, कोई भी 8085 या कोई एक आर्किटेक्चर ले लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि रजिस्टर्स भी होते हैं, कोई सा भी ले लीजिए. सो दीज आर रजिस्टर B, C, D, E, है ना. सो ये रजिस्टर्स होते हैं, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा. तो दीज आर द रजिस्टर्स. सो इट इज स्टोरिंग द डेटा. अच्छा, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप भी सुना होगा. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप? एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पेट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यूअर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. छोटा सा. makes up the register. Registers are made up of flip-flops. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने. सो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज योर रजिस्टर. सो फ्लिप फ्लॉप स्टोर हाउ मेनी बिट्स? फ्लिप फ्लॉप कितना स्टोर करता है एक समय में? One bit. Very good. So flip flop store 1 bit and register store can store more than 1 bit. ठीक है. Getting? बच्चों? Yes, sir. Fine. Yes. तो ठीक है. तो यहाँ हमने अभी डिस्कस किया HLR और VLR. तो R क्या है? R रजिस्टर है ना. जैसे ही रजिस्टर आया तो फिर में हम लोग रजिस्टर के अंदर घुस गए. फिर रजिस्टर की बात आई तो है ना, वी वेंट टू दिस फ्लिप फ्लॉप. क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे होम लोकेशन रजिस्टर, सो दिस इज रजिस्टर, मतलब वी आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट लोकल यूजर. मैंने सपोज गाजियाबाद से सिम खरीदा, तो उस गाजियाबाद के एक वहाँ पर एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा. क्लियर? और नाउ यू आर लेजिटिमेट यूजर, और आपका ऑथेंटिसिटी आपकी वैलिड होगी उस केस में, क्योंकि आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर है. ऑन द अदर हैंड VLR क्या होगा कि ये विजिटर है. सपोज आप गाजियाबाद में आपने परचेस किया और राइट नाउ यू लैंडेड टू मुंबई, आप मुंबई चले गए. क्लियर? सो देयर मुंबई में क्या हो गया कि वहाँ आपका जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है वो एज ए विजिटर हो रहा है ना. यू आर विजिटर, है ना, फॉर दैट मुंबई. आपका मुंबई का सिम नहीं है ना, आप रोमिंग में है. क्लियर? तो वहाँ के लिए आप विजिटर बन गए. अरे गेटिंग? जब आप रोमिंग में जा रहे हैं तो आप विजिटर बन गए उसके अंदर. और जहाँ आपने सिम परचेस किया है वो आपका क्या हो गया? वो होम लोकेशन हो गया, HLR. बच्चों ये क्लियर है HLR एंड VLR? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो यहाँ जहाँ सिम खरीदा हमने, दैट इज योर, वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो होम लोन है ना, होम लोकेशन है जहाँ आपने परचेस किया. और जहाँ जा रहे हैं, रोमिंग में जा रहे हैं, वो विजिटर. तो ये विजिटर अल्टीमेटली कंसल्ट करता है HLR को. क्लियर? वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? वो सारा HLR में है. सारे इंफॉर्मेशन आपके HLR में स्टोर्ड है. क्लियर? इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे. क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नोकिया है, नोकिया में कौन सा वर्जन है, IMEI नंबर क्या है उसका,
दो IMEI नंबर है क्या, अगर दो सिम है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करते हैं। इवन जब आप वो भी करते हैं, सपोज इफ यू आर ब्राउजिंग समथिंग, तो देयर इट इज गोइंग टू से कि इट इज शोइंग दैट इंटायर इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम नोकिया और लास्ट मैसेज फ्रॉम सैमसंग, ऐसा इंफॉर्मेशन दिखाता है। क्लियर? सो दिस इज बिकॉज ऑफ योर HLR, यहीं से वो लेता है सारा इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू योर ऑथेंटिकेशन सेंटर, AUC। AUC यहाँ पर अभी हमने देखा था, ये सो वेयर वी ओपन, इसको बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज योर AUC। क्लियर? ऑथेंटिकेशन, तो ये वाला पार्ट है ना। HLR VLR हमने देखा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। उसके बाद EIR पे आएंगे। क्लियर? तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है कि मैं, है ना, लेजिटिमेट यूजर हूँ, ऑथेंटिक यूजर हूँ, है ना, मेरी एंट्री है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यू आर कमिंग टू काइट, नाउ इफ यू आर वियरिंग द आई कार्ड, है ना, इफ यू हैव पेड द अमाउंट, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ KIET, है ना, या MIT कहीं की स्टूडेंट है, तो आपको वहाँ रोकेंगे नहीं। क्लियर? लेकिन आप ऑथेंटिक यूजर नहीं है तो दे मे स्टॉप, दे मे इंक्वायर कि किससे मिलना है, क्यों आए हैं ये, है ना। जब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन है ना, ये सही बंदे से मिलने जा रहे हैं, तभी आपको अलाउ करेंगे। क्लियर? सो एनीबडी कैन नॉट गो फॉर दिस। क्लियर? जैसे मैंने BSNL का सिम लिया और मैं चाह रहा हूं कि एयरटेल के नेटवर्क में घुस जाऊं। क्लियर? तो उस केस में जो आपस में उसकी MOU साइन हुई होगी, उसी के बेस पे वो अलाउ करेगा, है ना। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आपस में दो कंपनी के बीच में हो रहा है। क्लियर? तो दिस इज योर ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक नहीं होगा तो नहीं अलाउ करेगा। क्लियर? क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है ना। कभी भी कहीं भी घुस के आप उसके इंफॉर्मेशन को निकाल नहीं सकते हैं। जब आप ऑथराइज्ड यूजर हैं, तभी आप उसकी फीचर्स को या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं। गेटिंग? नाउ कमिंग टू योर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, EIR के नाम से है। क्लियर? तो दिस इज क्वाइट सिमिलर टू योर IMEI नंबर जो हम लोग बोलते हैं। तो उसी इक्विपमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको कवर करेगा। और ये बहुत काम का चीज़ है ना। जैसे आपकी चीज़ें खो जाती हैं, मोबाइल खो जाता है, FIR आप करते हैं, तो वो IMEI नंबर से ही फिर वो ट्रेस करता है कि जैसे ही वो बंदा सिम डालता है अपने मोबाइल में, इमीडिएटली इट इज गोइंग टू से दैट सिम हैज बीन इंसर्टेड इन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, और ये मोबाइल का स्पेसिफिकेशन ये है, सैमसंग में यूज हुआ है। तो इमीडिएटली फिर वो, है ना, वो जो थेफ्ट है आपका, उस केस में जो चोरी हुई है, उस केस में we are able to trace where that particular SIM is really working. Clear? Where that device is really working. Even though you are inserting some new SIM, नया SIM आप डाल रहे हैं, है ना, मान लीजिए BSNL का था, है ना, that thief is going to throw that BSNL SIM and that thief is going to insert Airtel SIM. So immediately the moment he is going to put that Airtel SIM, the entire particular are going to be taken care by this EIR. The entire information will be captured by this EIR. तो ये भी एक important aspect है. Fine. Now coming to your mobile switching center. Short में हम लोग MSC बोलते हैं. अभी आगे चल के BSC भी बोलेंगे, है ना, बेस स्विचिंग सेंटर. तो अभी हम लोग we are going to talk about your मोबाइल स्विचिंग सेंटर. तो है ना, BSC और MSC आपस में लिंक होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. जैसे अभी मैं इमेज दिखाता हूँ. So this is BSC, है ना, दिस इज बेस स्विचिंग सेंटर, है ना, मोबाइल स्विचिंग सेंटर. तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं. क्लियर? और एक BSC के अंदर, है ना, जो ट्रांसीवर है, बहुत सारे ट्रांसीवर होंगे, कई सारे BTS होंगे, जो ये बेस स्विचिंग कंट्रोल करेगा. सो दिस इज कंट्रोलर, दिस इज गोइंग टू कंट्रोल n नंबर ऑफ योर BTS. लेकिन एक BSC दूसरे MSC से कम्युनिकेट करेगा. क्लियर? तो so this is all about that mobile switching center, MSC. Clear? So the purpose of this is to control the entire task.
जो कॉल आ रही है, जो कॉल जा रही है, जो टर्मिनेट करना है कॉल को, कितने देर कॉल रखना है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? सो दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय योर MSC, मोबाइल स्विचिंग सेंटर. So up to here it is fine. Now coming to your radio system, that is RSS करके हम लोग बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में. क्लियर? तो रेडियो सब सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल रेडियो सिग्नल्स, मतलब इसमें रेडियो स्पेसिफिक जो भी बातें होंगी वो रेडियो सिग्नल्स से कैप्चर होगी. क्लियर? और इसके अंदर जो हम लोग कवर करेंगे वो मोबाइल स्टेशन कवर करेंगे, शॉर्ट में MS बोलेंगे मोबाइल स्टेशन को, और BSS बोलेंगे, दैट इज बेस स्टेशन सब सिस्टम, BSS. क्लियर? तो RSS के अंदर 2 फर्दर पार्ट होगा, है ना, और भी इसके अंदर वो पार्टीशंस होंगे, लेकिन अभी 2 पार्ट इंपॉर्टेंट होगा जो MS और BSS के नाम से जाना जाएगा. क्लियर? इसके अलावा हम लोग 2 चीज़ और देखेंगे, जो A इंटरफेस है ना, जो RSS और NSS के बीच का एक डिमार्केशन लाइन होगा उसको A इंटरफेस बोलेंगे. क्लियर? और OSS है ना, और इसके बीच का जो होगा OSS और NSS के बीच का जो इंटरफेस होगा, वी आर गोइंग टू से दिस O इंटरफेस. क्लियर? A मतलब एयर, जनरली एयर इंटरफेस, मतलब एयर टू एयर बात हो रही है, तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे. क्लियर? नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट पार्ट. सो वी वर टॉकिंग अबाउट BSS, है ना, तो अब BSS है क्या, BSC क्या है, BTS क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक 2 लाइन हम लोग देखते हैं कि है क्या ये. क्लियर? और इमेज में भी हमने देखा कि, है ना, BSS कैसे काम कर रहा है, BSC, BTS, हाउ द थिंग्स आर रियली वर्किंग. क्लियर? बच्चों यहाँ तक क्लियर हो रहा है? जहाँ भी, हाँ, जहाँ भी डाउट हो, हाँ ना, यू जस्ट लेट मी नो, यू स्टॉप मी एंड जस्ट लेट मी नो, एक बार सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए या क्लियर नहीं है. अच्छा, अब आते हैं बेस स्टेशन सब सिस्टम के बारे में. क्लियर? तो ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है GSM का, है ना. GSM आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, जिसमें कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर इनकोडिंग डिकोडिंग. जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, उसको शॉर्ट करना है, छोटा करना है, क्योंकि द एंटायर डेटा कैनॉट बी सेंट ऑन द मशीन. क्लियर? तो उसको कंप्रेस करना है. कंप्रेस करने से फायदा क्या होगा? हमारी मेमोरी बचेगी. मेमोरी बचने से फायदा क्या होगा? पैकेट की साइज छोटी हो जाएगी. पैकेट छोटा होने से क्या फायदा होगा? बैंडविड्थ कम लगेगा. बैंडविड्थ कम लगेगा तो क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ जाएगी, है ना. कम टाइम पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट ट्रांसमिट कर पाऊंगा. क्लियर? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कोडिंग, है ना, कोडिंग डिकोडिंग जो इसमें हो रहा है. क्लियर? तो 2 बेस स्टेशन सब सिस्टम में, है ना, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कोडिंग. जो वॉइस हम लोग बोल रहे हैं या वीडियो हमने भेजा है ना, या कुछ MSS वो मल्टीमीडिया सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, तो उसको कंप्रेस कर देगा, इनकोड कर देगा. क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट और पार्ट होगा कि इसमें सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी आपकी. जैसे अगर इनकोडिंग हो जाती है तो मैन इन द मिडिल कैन नॉट रीड दैट. कोई भी मान लीजिए मैन इन द मिडिल है, कोई ट्रेस कर लिया आपका वो, तो उसको पता नहीं चलेगा. गेटिंग? जैसे सपोज वन नोट एक बार खोल लेता हूं. सपोज माई पासवर्ड इज ABC मान लीजिए, ऐसा है ना, मेरा पासवर्ड कुछ ऐसा करके है ना. सपोज दिस इज माई पासवर्ड ABC. सो दिस इज माई पासवर्ड. अब मैं इसको इनकोड करके लिख दिया, इसकी आस्काई वैल्यू लिख दिया मैंने, है ना. मान लीजिए 65, फिर एक ब्लैंक स्पेस दे दिया 66, फिर एक ब्लैंक स्पेस दे दिया 67. क्लियर? मैंने इसको इनकोड कर दिया, है ना. प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कर दिया एक तरह से, है ना. सीजर साइफर आपने पढ़ा होगा, है ना. सीजर साइफर पढ़ा है आपने, जिसमें A को मैंने बोल दिया 6 बोल दिया, या इसमें 2 ऐड कर दिया 65 कर दिया 67, 2 एडिशन कर दिया, है ना. एक सिंपलेस्ट आपका एनक्रिप्शन टेक्निक है सीजर साइफर, है ना. समझ आ रहा है बच्चों? राइट. तो अब मैंने जो मेरे पास है, या मैंने डायरी में ये नोट किया है, अब कोई डायरी का कंटेंट किसी के हाथ लग गया. गेटिंग? सो ही इन हाउ गॉट दिस वन, है ना, या ईवैस ड्रॉपिंग कर रहा है, वो चेक कर रहा है ना, चोरी छिपे उसने ले लिया ये पूरा डेटा, तो उसको क्या मिल गया? 65, 66, 67. अब ये पासवर्ड वो डालता है,
जैसे ये पासवर्ड डालेगा ही इज अनेबल टू ब्रेक दैट पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड तो है ही नहीं। बट आई नो दैट, है ना, इसको अब मैं बैक टेस्ट करूंगा, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कर दिया और साइफर टेक्स्ट से वापस हम प्लेन टेक्स्ट में करेंगे। क्लियर? तो मुझे क्या मिला, ए बी सी, ये 3 मिल गया, 65 के करस्पॉन्डिंग ए, 66 के करस्पॉन्डिंग बी, 67 के करस्पॉन्डिंग सी, ये सारा चीज मेरे पास अभी स्टोर हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो इससे ये भी फायदा हो गया कि सिक्योर भी हो गया मेरा। क्लियर? कंप्रेस भी करूंगा मैं, एट द सेम टाइम मैं इनकोडिंग डिकोडिंग भी इसको करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट आइए बीएससी के बारे में, दैट इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, है ना। तो जो हमने इमेज में एक बार देखा था बीएससी, ये देखिए, तो बीएससी इज गोइंग टू कम्युनिकेट विथ एमएससी। तो बीएसएस, ये दिस इज ऑल अबाउट बीएसएस, ये यहां से यहां तक बीएसएस है ना। बीएसएस और दिस एनएसएस, तो बीएसएस और एनएसएस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बीएससी और एमएससी के थ्रू हो रहा है। क्लियर? Yes. ठीक है, ठीक है। और दीज आर द डिमार्केशन लाइन, ये डिमार्केशन लाइन है जो हमने यहाँ पर देखा था। सो डिमार्केशन ए इंटरफेस, ओ इंटरफेस, उसको हमने ए इंटरफेस बोल दिया, ओ इंटरफेस बोल दिया, इस तरह से हमने डिमार्केशन लाइन दे दिया, लाइन दे दिया। क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू योर, ठीक है, अप टू हियर इट इज फाइन। तो अब नाउ दिस इज कंट्रोलर। अभी एक बीएससी के अंदर बहुत सारे बीटीएस होंगे। देखिए यहाँ पर अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे बीटीएस। तो एक बीएससी के अंदर वी आर गोइंग टू हैव एन नंबर ऑफ बेस ट्रांसीवर स्टेशन, शॉर्ट में बीटीएस बोलेंगे। तो बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो है बहुत सारे होंगे, है ना। ट्रांसीवर का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ड से मिला है ट्रांसीवर, एक सिंगल वर्ड, राइट, वेरी गुड, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, तो उसको ट्रांसीवर बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच, है ना, ब्रंच बोल देते हैं, है ना, 2 वर्ड को मिला के मिक्स करके, है ना, ब्रेकफास्ट प्लस लंच को ब्रंच बोल दिया हमने। बहुत सारे ऐसे हैं, राउटर और है ना, और रिपीटर, है ना, और वो आपका जो राउटिंग प्रोटोकॉल है जो, है ना, दोनों को मिक्स कर दिए तो ब्राउटर वो हम लोग बोल देते हैं, है ना। ब्रिज और है ना, तो ब्रिज और उसको मिक्स कर दिया तो ब्राउटर बोल दिया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जैसे इस केस में ट्रांसीवर को, है ना, रिसीवर, ट्रांसमीटर और रिसीवर को मिक्स कर दिया तो ट्रांसीवर नाम बता दिया। गेटिंग? तो देखिए बेस ट्रांसीवर स्टेशन, क्योंकि ये ट्रांसमिट भी कर पाएगा और रिसीव भी कर पाएगा, जैसे हमारा मोबाइल है। क्लियर? सो आई मे ट्रांसमिट द सिग्नल और आई मे रिसीव द सिग्नल। क्लियर? तो एक बहुत सारे बीटीएस के अंदर, है ना, वी आर गोइंग टू हैव, दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय 1 बीएससी। तो एक बीएससी के अंदर बहुत सारे बीटीएस हो सकते हैं। देखिए मैं एक बार इमेज दिखाता हूं, दिस इज बीएससी। तो ये बीएससी के अंदर बहुत सारे आपके बेस स्टेशन, ट्रांसीवर रिसीवर वाले जो पार्ट हैं बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? और इसको कौन कंट्रोल करेगा? दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय बीएससी, है ना। जैसे सपोज काइट कॉलेज इज देयर, अब ये काइट कॉलेज को कंट्रोल करने के लिए कोई एक हायर अथॉरिटी होनी चाहिए। क्लियर? मान लीजिए चेयरमैन सर हैं, फिर डायरेक्टर सर हैं उनके नीचे, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर सर हैं, फिर एचओडीज हैं, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे, सॉरी डीन्स हैं, फिर डीन्स के अंदर एचओडीज होंगे। तो ऐसे बहुत सारा लेयर बना हुआ है ना। तो दे आर द कंट्रोलिंग एलिमेंट, कि कुछ दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपको एड्रेस करना है उनको। तो ये सारा चीज, है ना, स्मूथ रनिंग के लिए ये कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अच्छा, उसमें इंटरफेस के जो एमएस और इसके बीच में जो इंटरफेसिंग है ना, सो दे हैव गिवन द नेम यूएम इंटरफेस, एबीएस इंटरफेस, अलग अलग इंटरफेस का नाम दिया गया है बीटीएस में। और लास्ट आपका जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, ओएसएस के नाम से है। सो ओएसएस, मैं एक बार फिर से इमेज दिखाता हूँ, हियर इट इज नॉट गिवन। सो जो लास्ट पार्ट है वो ओएसएस जो पार्ट है वो यहाँ पर है। क्लियर? उसी इमेज में एक बार दिखा देता हूँ। अच्छा, ओएसएस के अंदर, है ना, यू आर गोइंग टू हैव दिस सिम एमएस, यहाँ जो आप इमेज देखे होंगे ये सिम है। क्लियर? है ना।
MS मोबाइल स्टेशन, ये मोबाइल है ना. सो दिस इज ऑल कमिंग अंडर दिस OSS पार्ट. क्लियर? तो वो OSS के अंदर आ रहा, ऑपरेशन एंड सपोर्ट सिस्टम. ये पूरा का पूरी जो सपोर्ट इसको मिल रही है ना, ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज कमिंग अंडर दिस MS सिम. ये सारा इसके अंदर आ रहा है. कभी कभी वो पूछ भी लेते हैं, है ना, सिम का फुल फॉर्म बता दीजिए. तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना. सिम का क्या फुल फॉर्म हुआ? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. और MS मोबाइल स्टेशन हो गया, सिंपल. क्लियर? ये सारे चीजें. इवन IMEI नंबर भी पूछ लेते हैं कि 2 सिम है तो 2 IMEI नंबर होगा. क्लियर? इवन यू कैन सी योर IMEI नंबर ऑल्सो. अपने मोबाइल में एक कोड होता है. लेट मी सी दैट कोड, हाउ टू सी IMEI नंबर. तो ये देखिए कोड है. अभी मोबाइल है आपके पास? मोबाइल में? यस सर. हाँ, एक बार टाइप करके देखिए, क्या IMEI नंबर शो कर रहा है? यस सर. है ना. तो देखिए दिखा रहा होगा. स्टार प्रेस करना है, हैश प्रेस करना है, ठीक है, कीबोर्ड से, मतलब मोबाइल का आप जो आप की कर रहे हैं. फिर आपको 0 से करना है 6 और हैश. क्लियर? 2 सिम होगा तो 2 IMEI नंबर दिख रहे होंगे. गेटिंग? तो ये सारे लोकेशन उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं. क्लियर? 0 स्टार हैश 06 हैश, ये आप डायल करेंगे तो आपको IMEI नंबर, है ना. मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं है, पीछे भी लिखा रहता है. जब आप उसका बैटरी निकालेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे IMEI नंबर है. लेकिन कई केसेस में रिमूवेबल बैटरी नहीं आ रही है आजकल, है ना, कि रिमूव करके देख सके. वो फिक्स रहता है उसके अंदर. तब कैसे देखेंगे? तो ये एक मेथड है. ठीक है, तो एज्यूमिंग ये सारा क्लियर हुआ आपको, दिस इज ऑल अबाउट दैट. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर न्यूमेरिकल. जो हमने बताया था, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं. देखिए टाइम इज देयर, थोड़ा सा है, तो इसको मैं एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये जो न्यूमेरिकल जो मैं बताने जा रहा हूँ CDMA का, कि कैसे डेटा ट्रांसमिट होता है. क्लियर? तो ये देखिए है ना, CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. सो दिस इज द कोर पार्ट. ये जो है कोर पार्ट है. अच्छा, इसको थोड़ा और बड़ा करूं मैं, जस्ट वेट. सो आई थिंक इट माइट बी विजिबल, थोड़ा सा दिख रहा होगा बेटर. ठीक है बच्चों, Yes, दिख रहा sir. होगा, राइट. तो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस. अब मैं ये अभी फोकस कर रहा हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेंगे. सो D इज द डेटा. D1 D2 D3 D4 ये देख रहे होंगे, ये डेटा है. दीज आर द स्टेशन. स्टेशन 1, स्टेशन 2, ये 1 2 जो लिखा हुआ है, दीज आर स्टेशन. स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4. स्टेशन मतलब जो भी मोबाइल इक्विपमेंट है आपका, वहाँ से ट्रांसमिट करनी है आपको, है ना. इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी मोबाइल, इट मे बी योर सम कम्युनिकेटिंग डिवाइस, PDA, कुछ भी हो सकता है. तो अब मैंने सपोज मुझे कोई भी डेटा भेजना है. नाउ C1 C2 C3 C4 सबका अलग अलग कोड है. इसका अपना कोड होगा, इसका अपना कोड होगा, है ना. दिस स्टेशन 3 इज गोइंग टू हैव इट्स ओन कोड, स्टेशन 4 इज गोइंग टू हैव इट्स ओन कोड. क्लियर? सबका अलग अलग कोड होगा, है ना. उसको चिप सीक्वेंस बोलेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा. ऑर्थोगोनल कोड होता है वो चिप सीक्वेंस. क्लियर? आई विल लेट यू नो कि होता क्या है, कि बड़े ध्यान से हम लोग करेंगे अभी. अब क्या कर रहे हैं कि नाउ दिस कोड इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई डेटा, है ना. डेटा क्या होगा? या तो मैं 0 ट्रांसमिट करूंगा या 1 ट्रांसमिट करूंगा. क्लियर? है ना. ये मेरे पास डेटा है ना. फॉर द टाइम बिंग अभी 0 1, अभी एक एक बिट के बारे में बात कर रहे हैं, कि एक बिट इसको ट्रांसमिट करना है, एक बिट इसको ट्रांसमिट करना है. या तो 0 करेगा या 1 करेगा. गेटिंग? नाउ वी आर गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू.
ये जो डेटा है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया C1 से, इसी तरह से इसका डेटा डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इन दिस वे आई एम गोइंग टू टेक द डॉट प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली क्या आया, ये कोड जो था इसका डॉट प्रोडक्ट D1 से, तो D1 C1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर D1 C1 आ गया। क्लियर? इसी तरह से इसको ऐड कर दिया D2 C2 से। D2 क्या है, डेटा है जो सेकंड स्टेशन को भेजना था। C2 क्या है, इसका कोड है ना। यही मैंने बात किया था ना, एक कमरे में सपोज चार लोगों का GD कराना है, ग्रुप डिस्कशन कराना है, तो एक को बोल दिया कि आप फ्रेंच में बात करो, एक को बोल दिया कि आप ना जर्मन में बात करो, एक को बोल दिया उर्दू में बात करो, एक को बोल दिया इंग्लिश में बात करो। तो उसमें क्या होगा, इंटरमिंगलिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे वर्ड, है ना, इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। तो इसलिए CDMA का वो आया था। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि चैनल हमारे पास एक ही है, सबको उसी चैनल से डेटा भेजना है। तो अभी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। D1 C1 है ना, D2 C2, D3 C3 ये थर्ड स्टेशन वाला, और D4 C4। अभी फॉर द टाइम बिंग समझने के लिए 4 स्टेशन लिया मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास ये आपका पूरा का पूरा कोड वर्ड आ गया जो कॉमन चैनल में ट्रांसमिट होगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस चिपसेट सीक्वेंस। ये चिपसेट सीक्वेंस क्या है, जो चिप सीक्वेंस होगा वो इस तरह से डिफाइन होगा, C1 C2 C3 C4। क्लियर? आप अपने तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कैसे, कोई भी C1 C2 C1 का किसी से भी मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आंसर आना चाहिए। C2 का किसी से भी डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0 आएगा। C3 का किसी से भी डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो 0। इन द सेम वे, if I'm going to take the dot product of C4 with any of the chip sequence, we are going to get 0। तो ये एक ध्यान रखना है। अच्छा, अपने से अगर मैं लूंगा C1.C1 तो वो कितना शो करेगा, नंबर ऑफ चैनल्स, है ना, नंबर ऑफ स्टेशंस। जैसे एक मैं ले लेता हूं C2 का C2 के साथ। क्लियर? तो यहां पर मैं एक बार करके दिखाता हूं। So I'm going to take the dot product of C2 with C2, दोनों सेम ले लिया। C2, ये मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे टच पैड मुझे लाना है, मैं भूल जाता हूं। अब देखिए दिख रहा होगा C2 with C2 मुझे लेना है। C2 क्या है, +1। क्लियर? मैं लिख दूं C2 को, एक बार कोड वर्ड यहां लिख देता हूं। क्या है बताइए, C2 का +1, नेक्स्ट क्या है -1, फिर +1 है और फिर -1। वेरी गुड, ये है। अब मैं इसका इसी के साथ ले रहा हूं, C2 का C2 के साथ ले रहा हूं, तो 1.1 क्या हो गया, 1 हो गया, +1 इंटू +1 1 हो गया। क्लियर? ये काम हो गया। फिर -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1 हो गया। फिर इसको लेऊंगा +1 इंटू +1। क्यों 2 बार ले रहा हूं, क्योंकि सेम से प्रोडक्ट कर रहा हूं, C2 का C2 से कर रहा हूं। क्लियर? तो अब थर्ड वाले पे आते हैं, 1 +1 इंटू +1 +1 हो गया। गेटिंग? इसी तरह से -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। अब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस विच आर ट्रांसमिटिंग द डेटा। 4 आ गया। तो हमारे पास, मैं देखा भी यहां पर 4 स्टेशन है, 1 2 3 4 स्टेशन आर देयर। तो इससे, इस फॉर्मूले से, इस एल्गोरिथम से क्या निकल आया कि मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस निकल आया, कितने स्टेशंस मेरे पास हैं जो ट्रांसमिट कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई सा भी ले लीजिए, C1 को ले लीजिए, मान लीजिए इफ आई एम गोइंग टू टेक C1। बच्चों टाइमिंग कब तक है, 40 तक होगा। यस सर। ठीक है, 40 तक होना चाहिए। यस सर। फाइन। तो अब मैं C1 ले रहा हूँ। C1 का देखिए, थोड़ा फास्ट करेंगे। C1 का बताते जाइए, कोड क्या है, +1 है। दिस इज द कोड ऑफ, हाँ, all 4 are +1। ऑल 4 आर +1, या कोई सा भी ले सकते हैं। इस केस में तो मान लीजिए सारा +1 हो गया।
आई कैन टेक एनी ऑफ द कोड वर्ड। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, मतलब C1 डॉट C2 करना है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं। C1 डॉट C2 करना है। अब बताइए क्या आंसर आना चाहिए। 1 इंटू 1 मतलब प्लस, हाँ +1 इंटू +1 +1 हो गया, +1। सेकंड वाला देखिए, ये और ये देखिए, सेकंड +1 इंटू -1 -1 हो गया, -1 लिख दिया। +1 इंटू +1 है ना, थर्ड वाला देखना हो, इसका थर्ड और इसका थर्ड, तो +1 इंटू +1 +1 हो गया। लास्ट वाला का देखना है ना, C1 का लास्ट और C2 का लास्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, तो C1 का लास्ट C2 का लास्ट, लास्ट क्या है +1 इंटू -1, तो -1। तो आप जब जोड़ेंगे इसको कितना आ रहा है, इसको 2 प्लस है 2 माइनस 0। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, है ना। तो ये जो मैं ले रहा हूं वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ कि जो भी मैं ले रहा हूं उसके अंदर किसी का भी किसी के साथ, C4 का आप C1 से करेंगे तब भी 0 आएगा, C4 का C3 किसी का भी आप पेयर करेंगे और डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यू मस्ट गेट 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तब आपका वो कोड सही नहीं आएगा। जब आप सेंड करेंगे जो डेटा, सेंडर रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द करेक्ट, है ना, यू आर गोइंग टू गेट सम एरोनियस डेटा, कुछ एरर आएगा उसके अंदर। क्लियर? ठीक है, कोई सा भी देख लीजिएगा, है ना, इसको चेक कीजिएगा, तो यू आर गोइंग टू गेट 0। अब देखिए, अब क्या करना है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे 0 भेजना है, डेटा बिट ये D1 है ना, D1 दिस इज डेटा बिट, D1 D2 D3 D4 ये डेटा बिट है। क्लियर? साइलेंस के लिए मतलब अगर कुछ नहीं भेजना है तो मैं 0 करूंगा, है ना। 1 बिट भेजना है तो +1 करूंगा, और 0 बिट भेजना है तो मैं वहां रिप्लेस कर दूंगा -1 से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसकी कोडिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, एल्गोरिथम जो आप बनाएंगे, प्रोग्रामिंग जो बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। क्या बनाना है, मुझे 0 भेजना है तो मैं क्या लिखूंगा -1, मुझे 1 भेजना है तो मैं +1 लिखूंगा, और कुछ भी नहीं भेजना है, मुझे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, आई एम, है ना, एज्यूम दैट आई एम स्टेइंग साइलेंस, कुछ भी नहीं भेजना है, चुपचाप बैठा हूं, तो मैं 0 भेज दूंगा, तो वहां 0 से रिप्लेस करना है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, ये पार्ट क्लियर हुआ, ये पार्ट क्लियर हो गया। C2 डॉट राइट, C2 डॉट C2 करूंगा तो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टेशन 4, करेक्ट। C3 डॉट C3 करूंगा तो 4। कोई सा भी अपने से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम आ रहा है, मतलब सेम मतलब नंबर ऑफ स्टेशंस, है ना। C1 डॉट C1 क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टेशन, 4 आंसर आ जाएगा। C2 डॉट C2 भी करेंगे तब भी 4 दिखाएगा। तो इससे पता चल गया कि स्टेशन मेरे पास 4 स्टेशन हैं। और ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए किसी का भी डॉट प्रोडक्ट जो है उसका 0 आ जाना चाहिए, है ना। C1 का C2 C1 का C3 से, C1 का C4 से किसी का भी पेयर में करूंगा डॉट प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू गेट 0। ठीक है, 2 पार्ट समझ गए कि 0 अगर बिट भेजना है तो मैं -1 से रिप्लेस करूंगा, और 1 अगर बिट भेजना है तो +1 से रिप्लेस करूंगा। तो 1 तो ऑब्वियसली +1 है, इसमें कोई ये नहीं है, और कुछ भी नहीं भेजना है तो मैं 0 कर दूंगा। मेरे पास कुछ भेजने के लिए नहीं है तो मैं 0 मतलब 0 बिट नहीं है, मतलब कुछ भेजना ही नहीं है, दैट स्टेशन इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड दैट डेटा, है ना, ऑन टू द चैनल, उसके पास कोई डेटा भेजने के लिए नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने अब कोई एज्यूम कर लिया कि D1 को 1 भेजना है, ये डेटा है, दिस डेटा इट इज इंटरेस्टेड टू सेंड 1, D2 को 0 भेजना है, क्लियर, D3 को 1 भेजना है, ये वाला D3 जो है इसको 1 भेजना है। मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रहा होगा बेटा, क्लियर। अच्छा, D4 को राइट, D4 को 1 भेजना है, तो ये जो D4 है उसको 1 बिट भेजना है यहाँ से, तो ये आपका वो हो गया। अब इस कोडिंग के अनुसार मैं सारे को चेंज करूंगा। अगर 1 था तो मैं क्या बोला था, प्लस कीजिए, तो यहां देखिए +1 से रिप्लेस कर दूंगा, गेटिंग। अच्छा, अगर सपोज 0 बिट भेजना है तो मैं -1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो 0 अगर भेजना है, D2 को 0 भेजना था, है ना, ये D2 जो है
दिस वन, इसको 0 भेजना है। क्लियर? तो 0 भेजना है तो उसको क्या कर दिया, -1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 0 को -1 से, यहाँ देखिए ध्यान से। अच्छा, D3 को 1 भेजना है, D3 1 एक बिट भेजना चाह रहा है तो यहाँ +1 होगा, तो 1 मतलब +1 है ना। खाली बस ये ध्यान रखना है 0 होगा तो -1 और कुछ भी नहीं भेजना है। इस मान लीजिए D4 डोंट वांट टू सेंड एनीथिंग, उस केस में मैं 0 भेज दूंगा, साइलेंस है, उसके पास डेटा नहीं है। क्लियर? तो अभी ये वाला बोलिए। सर चिपसेट सीक्वेंस तो हमें गिवन होगा ना? नहीं, ये आप बनाएंगे, खुद बनाएंगे। सर ये तो कैसे बनाएंगे? इसमें कैसे पता चलेगा कि +1 लेने हैं -1 लेने हैं? मतलब किसी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए। ये जो आप कोई मान लीजिए C1 आपने ले लिया है ना, आंख बंद करके मान लीजिए सारा +1 ले लीजिए। अब C2 को ऐसा लेना है कि वो 0 हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट। और C3 को ऐसा लेना है, C3 को ऐसा लेना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। मान लीजिए एक और बढ़ा है तो इसका प्रोडक्ट भी 0 होगा, इसका प्रोडक्ट भी हो जाएगा। आपस में कोई सा भी मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा 2 का, है ना, पेयर में, तो 0 आना चाहिए। और 3 आपके पास बन गए तो चौथा मुझे ऐसा लेना है कि इसका किसी से भी डॉट प्रोडक्ट लूं तो 0 हो जाए। क्लियर? तो ये आपको नहीं दिया होगा, है ना। और अच्छा है दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो ये आपको डिजाइन करना है ना, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर ये डायग्राम दिया होगा क्या? ये वाला यस सर, नहीं, ऐसा डायग्राम देगा क्या? नहीं देगा डायग्राम। ये तो सर पता कैसे चलेगा कि नंबर ऑफ स्टेशंस कितने हैं? वो तो आपको जो सिनेरियो है ना, कुछ केस दिए होंगे, सो फ्रॉम देयर यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई। वो बोल देगा कि 5 स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है, 2 स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा है ना, 3 कर रहा है। दैट विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन इटसेल्फ। सर तो नंबर ऑफ स्टेशंस जितने होंगे चिपसेट सीक्वेंस में उतने ही नंबर ऑफ वंस होंगे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जैसे इस केस में 4 हो गए, है ना, तो उस केस में मान लीजिए एक और बढ़ा दिया तो एक चिपसेट और बढ़ जाएगी उससे, ओके सर। इन दिस वे। क्लियर? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट दिस 4, जो स्टैंडर्ड मान के चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। इससे ज़्यादा नहीं देगा क्योंकि, है ना, अकॉर्डिंगली यू मे नॉट बी गेटिंग टाइम। 3 घंटे का टाइम है, अगर इतना भी दे दिया तो बहुत टाइम आपका वो किल कर देगा। तो उसको बस ये मतलब है कि आपको प्रोसेस आ रहा है कि नहीं, और ये भी बहुत टाइम टेकन है। क्लियर? तो इट इज गोइंग टू टेक अनदर मान लीजिए 20 मिनट्स। अगर बहुत फास्ट भी कर रहे हैं तो 20 मिनट आपका खा जाएगा। बहुत फास्ट एक्यूरेट, आपको सब कुछ याद है, ये चिपसेट याद है, फटाफट फटाफट लिख दिए, ये मेथड पता ही है ना, तो आप 20 मिनट आपके लग जाएंगे। 15 से 20 मिनट आपके स्पॉइल होंगे, बहुत फास्ट होगा तब भी। अच्छा, अप टू हियर इट इज फाइन। यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 10:40 सो अच्छा, somebody is there, so 10:40 तक है बच्चों। Yes, sir. ओके, सो ठीक है, लेट मी स्टॉप। सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ये जो रेस्ट पार्ट है ना, इसी एग्जांपल को आगे लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Sir, attendance. नहीं, अब अटेंडेंस नहीं लूंगा मैं। अटेंडेंस जो लास्ट में आया है उनका अब नहीं लूंगा मैं। एक बार जब ले लिया उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू टेक अटेंडेंस। ठीक, सर लास्ट माइक इशू था सर। 5 मिनट लेट आए थे सर। कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट आए हैं, 2 मिनट, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टाइम एक अटेंडेंस से कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स स्टॉप।